Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is related with the memory management in operating system, and this is the very important aspect because CPU scheduling algorithms having some memory space into the memory management when it will be into the sequence presumption, preemption or non-preemption phases, and the also algorithm available under the deadlock. If the deadlock is appear under any memory part or any buffer part, how they will recover that, which memory it will take, that we will understand into this particular video tutorial. So all tutorial of the operating system available into the playlist of the operating system and NOS. If you don't see the previous parts, please, it's my humble request to all of you, kindly see the previous parts, and after that you will enter into that particular part. That will definitely help to all of you regarding the operating system functionality for the saving position under the temporary or the permanently. So what is the memory management? Memory is the actually a very important aspect of every gadget rather than operating system is whatever, either it's iOS, it's Android, it's Windows, it's Mac operating system, Unix, Linux, DOS operating system, whatever it is, but it's the very important aspect because there are so many memories available under the part of this. So how the memory will be configured with the memory management, because of there are so many memories, primary memory, cache memory, secondary memory, so many memories are into your gadgets. So how the operating system manage all the things, that is the main important aspect, because the amount of main memory available in computer system is very limited for your operations, because operating system having its own face, own capability, on software, and your software's files like .exe, .com, .bat are also competing with it. So moreover, to increase the performance, several processes and executed simultaneously, all the things very well, the keep several processes, the main memory having tackle over there. So memory management in operating system is having the file management, memory management, process management. And if you entered into the sharing process, it will enter into the network management. And if you enter into the global part, कि अगर आप कोई ऐसा पार्ट यूज कर रहे हो जिसमें ग्लोबली कोई सेंसिबिलिटी है तो पावर मैनेजमेंट भी आएगा। सिस्टम कॉल्स भी एंटर हो सकती हैं, यूजर इंटरफेस भी होता है और यूजर प्रोग्राम्स भी होते हैं, क्योंकि सिस्टम कॉल्स क्या है कि जो आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ डीलिंग कर रहे हो वो उसमें जाता है। इंटरफेस जो वो आपको एक देता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग का फीचर है, सी है या सी प्लस प्लस है, उसकी जब आपको ओपनिंग करनी है तो एक यूजर इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप लिखोगे। सिस्टम कॉल्स में शेल के थ्रू होगी, जैसे यूनिक्स का एक शेल है, यूनिक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो भी अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा, लाइनक्स की भी अवेलेबल है। सिस्टम कॉल्स है कि आप शेल को देख रहे हो, आपको बॉर्न शेल चाहिए, कॉर्न शेल चाहिए, सी शेल चाहिए, क्या शेल चाहिए, उसके बाद आपको एक इंटरफेस मिलता है, इधर वो टर्मिनल हो या पार्ट हो, उसमें आप फर्दर एक प्रोग्राम चला सकते हो। सेम इज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। और द विंडोज में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन किया है, वर्ड है, पावर पॉइंट है या कोई सी प्रोग्रामिंग है, तो उसमें भी पहले वो चेक करेगा कि दैट कंपैटिबिलिटी विद द पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच, मोस्ट प्रोबेबली ये सारे उसके प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में एवरी डे जब आप उसको ऑन करते हो तो रोम से रैम में मेमोरी आती है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द सिस्टम कॉल्स, जितने भी उसमें सॉफ्टवेयर आपने अनेबल करवाए होते हैं। सो रोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज वेरी स्टेटस फॉर्मेट बिकॉज इट इज यूज टू कीप ट्रैक, हर एक ट्रैकिंग उसने करनी है कि आपने जो स्पेस ली है वो कितनी ली है, कहाँ रखा है, प्राइमरी में रखा है, आपने हार्ड डिस्क में रखी है चीज या कहाँ उसने करी है। अगर लार्ज मेमोरी है तो वो भी आपको एलोकेट करेगा। सबसे पहले वो अपनी मेमोरीज को एलोकेशन करता है, जैसे उसकी हार्ड डिस्क है तो सी ड्राइव, डी ड्राइव सबसे पहले आएगी, तो सी में फुलफिलमेंट होगी तो डी में आएगी। मेमोरी मैनेजमेंट और परमिट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी जैसे लार्जर देन द साइज और अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी। तो क्या करती है, बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में दो जगह के ऊपर भी स्वैप करती रहती है। कुछ फाइल्स आपकी
जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में होती है, और कुछ फाइल्स आपकी माई डॉक्यूमेंट्स में होती है। जो माई डॉक्यूमेंट्स 100% पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना पार्ट है। हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी पार्ट है। अब वो फुलफिलमेंट करती है एज अ प्राइमरी पार्ट, बट उसका फंक्शनिंग लॉजिकल जो बेसिकली है वो वही है। सो मेमोरी मैनेजमेंट की फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना मेमोरी को, कि एग्जिबिट कोई अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ना हो। जैसे कोई भी पार्ट आप क्लोज करने लगते हो तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और नॉट। इफ यू सेट दैट नो, तो देन वो सेव नहीं करेगा। इफ यू सेट दैट यस, तो देन डेफिनेटली वो सेव करेगा। ऑटो सेविंग अगर ऑप्शन आप उसे दे देते हो, तो ऑटो सेविंग में भी वो आपकी फाइल कहीं ना कहीं सेव करके रखेगा। आइदर उस कंडीशन में आपने शट डाउन नहीं करना, सिस्टम स्लीप मोड में चला गया है तो रिकवरी करवा देगा। अगर इन केस शट डाउन कर दिया तो फिर मेमोरी आपको रिप्लेसमेंट नहीं दे सकती। मेमोरी मैनेजर और शेयरिंग करते हैं जो प्रोसेसेस की होती है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर देखिए दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट एंड नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट। सो कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट जो एलोकेशन है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स अ कंटीजियस ब्लॉक of memory to the users when it is requested to save some files. मीन्स कि असेस जब भी आपने फाइल का करना है तो बहुत फास्ट होगा। आपने सिक्वेंशली उसके ऊपर कोई भी पार्ट करना है। इन फ्यूचर मान लो आप एडिट करना चाहते हो, रीड राइट कोई भी प्रोसेस करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। जैसे आप स्टोर करके जाते हो फाइल किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स में स्टोर की तो वहीं मिलेगी, ड्राइव में की तो आपको वहीं मिलेगी। फिक्स पार्ट उसने रख दिया कि इधर ही कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। अगर उसने बोला कि ड्राइव में करनी, ड्राइव में ही कर सकते हो, कंटीजियस है। नॉन कंटीजियस में, अब कंटीजियस जो है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर भी चलती है, क्योंकि कंटीजियस मेमोरी में मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो एलोकेशन इंक्रीज करती है एज पर द प्रोसीजर ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। सो इसकी कंटीजियस मेमोरी के अंदर जो पार्ट प्ले होता है वो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एक पार्ट प्लेइंग पार्ट डिफरेंट तरह से प्ले होता है, क्योंकि फिक्स पार्ट पार्टीशंस होती हैं, फिक्स के अंदर लिमिटेड रजिस्टर्स होते हैं। इसका मतलब यही है कि मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन। कंटीजियस का यही है कि सेम पार्ट पे, जैसे 50 केबी की मेमोरी है तो टोटल 50 केबी का ही पार्ट चल सकता है, और उसी में ही आपको तोड़ना है। 50 केबी को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4 को डिवाइड करोगे 50 के साथ तो वो पार्ट उसमें आ जाएगा। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम इसमें भी चलती है। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में क्या होता है कि जब आपका पार्ट प्ले होता है तो उसके अंदर जैसे 50 केबी है, अलग अगली मेमोरी आपने 100 केबी ले ली, उससे फिर बढ़ाया 250 केबी ले ली, 150 ले ली, तो ये पार्ट कंटीजियस नहीं करता, ये नॉन कंटीजियस पार्ट का काम है। क्योंकि कंटीजियस के अंदर सिंगल कंटीजियस भी है, सिंगल कंटीजियस है तो एक ही मेमोरी है कि 100 केबी को डिवाइड कर लो, 50 केबी है तो उसको डिवाइड। मल्टीपल में फिक्स्ड भी होती है, डायनामिक भी होती है। तो डायनामिक की हेल्प से वो चीज हो सकती है, बट फिक्स की हेल्प से वो चीज नहीं हो सकती। और कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम भी है जिसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन है। अब हम देखते हैं कि जो फिक्स मैनेजमेंट है सिंगल की वो होती क्या है। सिंगल मैनेजमेंट की अभी मैंने बात की कि मेन मेमोरी को दो पार्ट्स में, दो पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे 50 केबी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर एक ही पार्ट है, एक ही प्रोसेसर है और एक ही काम है कि यही आपको चीज सेव करनी है। सीपीयू रिमेन्स आइडल, कम ही मिलता है, वेटिंग चलती रहती है क्योंकि डिस्क के ऊपर स्पेस ही नहीं होती। अब एक तरह का काम जा चुका है तो ये कोई सिंगल वाली जो पार्टीशन होती है ना वो मल्टी प्रोग्रामिंग को नहीं लेती, क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज है कि सिंगल के अंदर हमने देखा है कि जो स्कीम चलती है वो डिवाइड जरूर करती है पार्ट को, एरियाज को, पार्टीशंस को, बट अगर वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के अंदर वो मल्टी प्रोग्रामिंग का पार्ट प्ले नहीं करवाती। आइदर इन द मल्टी पार्टीशनिंग की अगर बात करें तो मल्टी पार्टीशनिंग के अंदर जब सिंगल कंटीजियस पार्ट चलता है तो दो तरह के फॉर्मेट से चलता है, एक है फिक्स, दूसरा है डायनामिक। फिक्स है तो स्टैटिक पार्टीशन होगी, कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर 50 केबी फाइल है तो उसके पार्ट इक्वलेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 10 केबी किसी को दे दो, 20 केबी किसी को दे दो, 20 केबी दोबारा दे दो, ऐसे नहीं, ये नहीं होगा। डिवाइडेशन कैसे होती है इसके अंदर, इफ इट इज द 50 केबी मेमोरी तो 50 का पार्ट जो आपने डिवाइड करना है वो इक्वलेंट पार्ट पे कर सकते हो, या तो 50 को आप डिवाइड कर दो 3 इक्वलेंट पार्ट में डिवाइडेड बाय 3 के साथ। अगर 3 के साथ नहीं करना चाहते
तो आप उसको ऑटोमेटिकली एंटर करवा सकते हो। यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड कर दो इसको, 4 के साथ, आप 4 के साथ भी ले सकते हो, या फिर अगर आपने इसको 5 पार्ट पे डिवाइड करना है तो कंटीजियस मेमोरी को 5 पार्ट पे भी डिवाइड किया जा सकता है। और अगर यही पार्ट स्टैटिक पार्टीशन का आ जाता है डायनामिक पार्टीशन में, तो डायनामिक पार्टीशन में ये कहती है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की ड्राइव है, तो उसमें अगर 2 उन्होंने दी है माई फाइल्स के अंदर, सी ड्राइव या डी ड्राइव, तो जरूरी नहीं है दोनों को एक इक्विवेलेंट फाइल मिली हो, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालते हैं तो पार्टीशनिंग के लेवल आते हैं, आइदर इन द 2 लेवल और इन द 3 लेवल और इन द 4 लेवल और इन द 5 लेवल, और इफ इट इज द कस्टमाइजेशन ऑप्शन। आपने बड़ी बार देखा होगा मेमोरी में कस्टमाइजेशन ऑप्शन होती है। कस्टमाइजेशन में डायनामिक पार्टीशन चलती है मेमोरी मैनेजमेंट की, जिसमें आप कस्टमाइज खुद करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 1 GB मेमोरी है, तो 1 GB का जो पार्ट आप लेने जा रहे हो, 1 GB को अब आपकी मर्जी है कि आपके पास उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, या फिर 2:1 करना चाहते हो। मीन्स कि 1 GB का जो 50% पार्ट है वो किसी एक को देना है, और जो 50% पार्ट बच रहा है वो बाकी 2 मेमोरीज को देना। मीन्स 3 टोटल है, एक को 50% पार्ट, 2 को 50 में से 25 पार्ट्स जा सकते हैं। बट यही अगर हम उसमें देख रहे थे स्टैटिक पार्टीशन में, स्टैटिक पार्टीशन में तो आपके पास जो है फिक्स होती है मेमोरी, उसमें ऐसे नहीं कर सकते। 2 देने हैं तो दोनों को 50-50 देना पड़ेगा। यही उसका एक डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज आ गया कि ये इजी टू मैनेज हो जाती है, हाँ, बट डिसएडवांटेज होती है कि सफर करता है। अब इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो जब इसकी मेमोरी लो हो जाएगी, तो ये आपने अगर मेमोरी फिक्स कर रखी है कि इसमें मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर ही डालना चाहती हूँ या डालना चाहता हूँ, तो फिर वो आपको प्राइमरी मेमोरी में एंट्री करने नहीं देगा। इसलिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के अंदर कि आपने पार्टीशन किस तरह की रखी है। इसी तरह से फिर वो सीपीयू शेड्यूल करता है, आपको देता है। लो मेमोरी है तो दूसरी मेमोरी देगा, तो आपको उसमें भी खुद ब खुद सेव करनी पड़ेगी। अब है पार्ट कि नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट कैसे चलती है। इसमें देखिए नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट में 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक पेजिंग और दूसरी है सेगमेंटेशन। क्योंकि नॉन कंटीजियस मेमोरी का जो पार्ट प्ले होता है वो बिल्कुल ही कंटीजियस से डिफरेंस है। नॉन कंटीजियस एलोकेशन के अंदर जो मेमोरी टेक्निक मैनेजमेंट चलती है वो है मेमोरी एलोकेशन एज पर द प्रोसेस इनटू द डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हो सकती है। इससे क्या होता है कि मेमोरी वेस्टेज होती है थोड़ी सी। एलोकेशन जो है वो आपने जब अलग अलग जगह के ऊपर दे दी तो एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। तो फंडामेंटल जो अप्रोच है इसकी वो वही अप्रोच है कि नॉन कंटीजियस मेमोरी आपका काम जल्दी प्ले करती है, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम की एलोकेशन मेमोरी अक्वायर करती है कंटीजियस से, उसके पास होगी तो नॉन कंटीजियस के पास आएगी। अगर नॉन कंटीजियस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एलोकेशन कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स में होती है, तो नॉन कंटीजियस में कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स में नहीं होती। नॉन कंटीजियस में जहां पे भी उसको प्लेस मिल जाती है वो वहीं पे उसको स्टोर कर देता है। तो इसकी एलोकेशन में हम यही देख रहे हैं कि अगर एलोकेटेड पार्ट कंटीजियस में जा रहा है तो उसका पार्ट जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से प्ले कर रहा है, क्योंकि कंटीजियस रेफर करता है आपकी बाउंड्री को कि आपने कहाँ पे एक्चुअल में स्टोर करनी है। आइदर अगर हम यही नॉन कंटीजियस की बात करते हैं, कंटीजियस में अंदर के अंदर नॉन कंटीजियस की बात होती है, तो वो फिर आपका जो मैप प्ले करवाता है वो इंडिविजुअल यूनिट का करवाता है, अरेंजमेंट इंडिविजुअल का कराता है, जैसे आप फोल्डर्स में चीज रखते हो। अब इसने बात की है पेजिंग टेक्निक की। पेजिंग टेक्निक देखिए इसमें कैसे यूज हो रही होती है। पेजिंग की टेक्निक के अंदर जब आप अपना काम डालते हो तो पेजिंग की टेक्निक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करती है कि एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस उसके पास होना चाहिए। वर्चुअल मेमोरी एड्रेस होगा तो वो काम कर सकती है। जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव है, एसएसडी होती है जो मेन मेमोरी, रैम है। रैम एक नॉन कंटीजियस पार्ट है, क्योंकि जब आप यूज करते हो तो रैंडमली आप कहीं पे भी सेव करते हो, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया, डेस्कटॉप में कर दिया, ऐसे पार्ट्स को। तो जो पेज होता है, पेज क्या करता है, इसमें 2 तरह की होती हैं, एक हायरार्किकल पेजिंग और एक आपकी मल्टी लेवल पेज। जो हायरार्किकल पेज का डेफिनेशन है उसमें मैपिंग होती है, जैसे फोल्डर के अंडर 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 फाइल जा रही है उस तरह से। और अगर आपका डायरेक्ट फेसेस के अंदर है तो फिर वो सिंपलेस्ट पार्ट होता है। तो पेजिंग एक मेथड है बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम को कंफर्म करने का कि आपने पेज फ्रेम्स में कैसे मेमोरीज को
देना है, जो वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं उसको कैसे आपने अप्लाई करना है। वर्चुअल एड्रेस एक्चुअली डील करता है CPU की टेक्निक्स के साथ, इसलिए इसको जरूरत पड़ जाती है। और जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो आपको मिलती है इसमें से, पेजिंग में से, वो उसका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे आपको यूज करते हो तो उसको जो बाइट्स मिल रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके सामने कुछ गार्बेज वैल्यूज प्रोग्रामिंग के अंदर उठ के आ जाती हैं यूनिट्स के अंदर, तो उसमें फिजिकल एड्रेस क्योंकि आपने दिया हुआ है, आप सेव कर रहे हो, आप कोई इन्फिनिट लूप चला चुके हो, तो उसमें एंट्री हो जाती है। और अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करती हूँ इसकी, तो सेगमेंटेशन के अंदर भी जो पार्ट प्ले होता है वो बिल्कुल ही पेजिंग की तरह है कि उसने अलग अलग पार्ट के ऊपर जो पार्ट प्ले करवा के आपके सामने चीजें रखी हुई हैं, वो सेगमेंटेशन में उसको लेगा, क्योंकि ये टेक्निक जो है डिवाइड करती है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को सेगमेंटेशन के अंदर। जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो सेगमेंट नंबर से भी हो सकती है, टेबल से भी हो सकती है, शेयरिंग जो आप करते हो जैसे मेमोरीज की, ड्राइव की, साइज की, प्रोग्राम लोड कोई कर रहे हो, अपलोडिंग कर रहे हो, डाउनलोडिंग कर रहे हो, तो उसकी। सो ये पार्ट था आपका एक प्रोसेस्ड पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट, और पेजिंग की टेक्निक्स और सेगमेंटेशन का न्यूमेरिकल पार्ट आपको मैं समझाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, kindly tell me in the comment box. Reply will be given definitely within the 24 hours to all of you. Till then, take care. Thank you.